معروف امیگریشن ماہر قانون بیرسٹر راشد اسلم کا کہنا ہے کہ بریکزٹ کے بعد یورپی باشندوں کے انخلاء سے پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے شہریوں کی مانگ میں اضافہ ہوگا اور ہنرمند اور غیر ہنرمند ویزوں میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ انہوں نے بیورو چیف ویو کے غلام حسین سے گفتگو میں کیا کہا، یہ دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ اس وقت لندن میں بیرسٹر راشد اسلم صاحب موجود ہیں۔ برطانوی امیگریشن قوانین کے اندر جو ہے اس وقت کافی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور کامن ویلتھ کنٹریز کو ایک نیا ویزا متعارف کرایا گیا ہے جس کا کامن ویلتھ کنٹریز کے شہریوں کو فائدہ ہوگا، ایگریکلچر ویزا۔ ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر بریکزٹ کے بعد اگر یورپین یونین کے جو سٹیزن ہیں وہ برطانیہ میں کم آئیں گے یا نہیں آئیں گے، تو جو کامن ویلتھ کنٹریز کے سٹیزن ہیں ان کو اس ویزے کا کتنا فائدہ ہوگا؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ خوشی کی بات ہے کہ نان یورپین جو کنٹریز ہیں اس کے لیے پہلی دفعہ کافی عرصے کے بعد کوئی ویزاس اناؤنس ہوئے ہیں یو کے کی طرف سے، کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو یورپین لوگ اتنے آتے تھے کہ یہاں پہ ضرورت نہیں تھی نان یورپینس کی، تو اب بریکزٹ کے بعد ہمارے لوگوں کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں زرعی حوالے سے انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش، یہ ان کی بات کر رہے ہیں جی، پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی، سری لنکن، جو بھی نان یورپین کنٹریز ہیں، افریقہ سے بھی بہت سارے ممالک ہے، تو یہ سب زرعی ویزا یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں، اس کیٹیگری میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ ان کو 2 سال کا ویزا ملے گا۔ وہ یہاں پہ آ کے جس بھی شخص کے پاس جاب کرنا چاہیں یا جس نے اسپانسر کیا اس کے پاس جاب کریں گے 2 سال کے لیے، ان کو وہی ویجز ملیں گے جو یہاں کے قانون کے مطابق منیمم ویج ریٹ ہے، یا جو ایگری ہوتی ہیں آپ کے اور اس شخص کے درمیان جو آپ کا امپلائر ہے یہاں پہ۔ تو اس ویزے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نان اسکلڈ ویزا یہ؟ جی بالکل نان اسکلڈ ویزا ہے۔ اس میں اوبویسلی آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے، جسمانی محنت زیادہ ہے اس میں، اس وجہ سے ہی یہاں ایسے کنٹریز سے ہی اس کو اپلائی کیا گیا کہ جہاں پہ اوبویسلی اگر تعلیم نہ بھی ہو تو لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2-3 اور کیٹیگریز اناؤنس کی گئی ہیں، جیسے اسٹارٹ اپ ویزا۔ میں یہ سمجھتا ہوں وہ بڑی اچھی کیٹیگری ہے ہمارے لوگوں کے لیے، کہ وہ لوگ جن کے پاس کوئی ایسا آئیڈیا ہے، نیا آئیڈیا کہ وہ یو کے میں بزنس کر سکتے ہیں، یہاں کی جو مارکیٹ ہے اس کو ٹچ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اسٹارٹ اپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس ویزا میں سب سے اہم بات ہے کہ آپ کو کوئی ایسی لمٹ نہیں دی گئی کہ کم از کم سرمایہ کتنا آپ یہاں پہ انویسٹ کریں گے، آپ تھوڑے پیسوں سے بھی بزنس کر سکتے ہیں۔ منیمم تو ہوگا نا، کتنے پیسے لگیں گے؟ اسٹارٹ اپ ویزا کے لیے ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ اتنے پیسے انویسٹ کریں، آپ کے پاس اچھا آئیڈیا ہونا چاہیے، قابل عمل آئیڈیا ہونا چاہیے۔ کسی کے پاس پیسے نہ ہوں تو پھر اگر پیسے نہ ہوں تو یہاں پہ بینکس ہیں، آپ ان کو اپلائی کریں۔ انڈورسمنٹ باڈیز یہاں پہ موجود ہیں، کیونکہ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ ایک بزنس پلان بنائیں گے، اس کے بعد آپ اس بزنس پلان کو یہاں پہ جو انڈورسمنٹ باڈیز کی لسٹ ہوم آفس نے پرووائڈ کی ہے اس کو بھیجنا پڑے گا۔ وہ پھر انڈورسمنٹ سرٹیفکیٹ دیں گے جس کی بیسس پہ آپ ویزا اپلائی کریں گے۔ ایک اور کیٹیگری اسی طرح کی انوویٹر ویزا، پہلے یہاں پہ گریجویٹ انٹرپرینور ویزا ہوتا تھا، اس کو تھوڑا سا چینج کر کے انوویٹر ویزا کا نام دیا گیا۔ اس میں ریکوائرمنٹ ہے کہ 50,000 آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی پراپرلی ایسی کوئی بزنس پلان ہونا چاہیے، کوئی ڈفرینٹ بزنس پلان ہونا چاہیے جس کی بیس پہ آپ یہاں پہ بزنس یہاں پہ اپنا جما سکیں، لوگوں کو جو ہے یہاں پہ اپنی سروسز دے سکیں۔ تو اس حوالے سے تو پھر ویزا ان کا ایکسٹینڈ ہو کے ان کو برٹش نیشنلٹی بھی مل سکتی ہے؟ جی، انوویٹر ویزا میں بالکل 5 سال کے بعد آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ جو اسٹارٹ اپ ویزا ہے وہ 2 سال کا ہے۔ 2 سال کے بعد آپ نے یا تو اس کو سوئچ کرنا ہے انوویٹر کیٹیگری میں یا کسی اور میں، یا پھر آپ واپس چلے جائیں گے۔ لیکن اس میں زیادہ لوگ، میں یہ سمجھتا ہوں جب اسٹیبلش بزنس ہو گیا ہوگا تو وہ اس کو سوئچ کریں گے انوویٹر کیٹیگری میں یا کسی اور کیٹیگری میں۔ تو یہ ایک اچھی راہیں ہیں جو نئی کھلی ہیں۔ ایک آخری بات بتائیں کہ یہ جو پہلے آپ نے زرعی ویزے کا بتایا، اس کو کیا اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا عام شہری کے لیے؟ وہ تھرو وکیل جائے گا یا خود بھی کر سکتے ہیں؟ آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ لوگ ہیں جو زراعت سے وابستہ ہیں، ان کے ساتھ آپ کانٹیکٹ کریں۔ بڑی بڑی کمپنیز ہیں یہاں پہ، جیسے بوسٹن کا ایریا یا دوسرے ایریا ہیں، وہاں پہ یورپینز اسی وجہ سے بہت زیادہ آئے کہ وہاں پہ کھپت تھی، یہاں پہ زرعی حوالے سے ضرورت تھی لوگوں کی۔ تو اگر آپ خود بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کہیں بھی بیٹھے آپ اپلائی کریں۔ یہاں پہ کمپنیز ہیں جو اس قسم کے لوگوں کو لیبر پرووائڈ کرتی ہیں، ان کمپنیز کو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، بنگلہ دیش میں جہاں بھی بیٹھے ہیں، آپ آن لائن اپلائی کریں۔ اگر آپ کا سی وی اس قابل ہوا تو آپ کو لیں گے اور بلا بھی لیں گے یہاں پہ۔ بہت شکریہ آپ کا برسر صاحب۔ تھینک یو جی۔ دنیا بھر میں آنکھوں کے مفت علاج کرنے والے سب سے بڑے فلاحی ادارے المصطفیٰ ٹرسٹ نے رمضان مبارک میں حی علیہ السلام کے سلوگن تلے فنڈ ریزنگ مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ لندن سے دیکھتے ہیں بیورو چیف ویو کے غلام حسین کی رپورٹ۔
इस महीने का ये कैसा फैजान है। लंदन के इलाका साउथ हॉल के मुकामी होटल में रमज़ान मुबारक की आमद के हवाले से अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में पाकिस्तान और दुनिया भर समेत बरतानिया में जारी अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट के फलाही कामों पर तफसील से गुफ्तगू की गई और खुसूसी तौर पर रमज़ान के बाबरकत महीने में इस्लामी तालीमात की रोशनी में बिला इम्तियाज रंगो नस्ल दुखी इंसानियत के लिए बढ़ चढ़ कर काम करने पर जोर दिया गया। अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट के लंदन में सदर अब्दुल रज़ाक साजिद का कहना था कि ये तंजीम कई बरसों से दुखी इंसानियत की खिदमत करती चली आ रही है। उन्होंने कहा कि रवां साल हय्युल अल फलाह के स्लोगन तले रमजानुल मुबारक में बरतानिया भर में फलाही कामों में तेजी लाई जाए। हमने अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से जो रमज़ान कैंपेन हमने लॉन्च की है, जिसका मेन स्लोगन ये है हय्या अल फलाह, आओ फलाह की तरफ। आम लोगों में खुशियाँ बांटें, लोगों का दुख दर्द दूर करें, लोगों में मोहब्बतें तकसीम करें, लोगों को ऐसी रोशनी दे जो दिलों की रोशनी हो, जो आँखों की रोशनी हो, जो इल्म की रोशनी हो, जो हर तरफ एक मोहब्बत प्यार का, हर तरफ एक अमन का और हर तरफ खुशबू फैले, ताकि दुनिया में नफ़रतें ख़त्म हो और हय्या अल फलाह का स्लोगन आम हो। तकरीब में टीवी चैनल्स और अखबारात के जरिए दिए जाने वाले पैगाम को भी स्क्रीन पर दिखाया गया, जिस पर हाजरीन की जानिब से दाद तहसीन पेश किया गया। तकरीब में दीगर शुरका ने भी खिताबात किए और अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट की खिदमात को सराहते हुए कहा कि बरतानिया जैसे मुल्क में इस्लामी तालीमात के जरिए फलाही कामों को फ़रोग देना यकीनी तौर पर काबिल सताइश काम है। आज जो अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट वालों ने अल फलाह के नाम से जो कैंपेन शुरू की है रमज़ान के बारे में, इंशाअल्लाह उसकी हम लोग कोशिश करेंगे कि उसकी भरपूर उनकी मदद करें और उनकी जो हेल्प है वो फंड रेजिंग वगैरह वो करनी चाहिए, क्योंकि अल मुस्तफ़ा वाले जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं वो दुनिया के दूसरे मुल्क में काम कर रहे हैं। माशाल्लाह मैं खुद जाके देखा है पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह इनका काम बहुत अच्छा है। हय्या अल फलाह इस कैंपेन का एक्चुअली नेम है, बट द कॉन्सेप्ट जो इसके पीछे इसका कॉन्सेप्ट है वो एक तो ये है कि डेफिनेटली फ़लाह की तरफ आएँ और हमारा पैगाम, हमारा मेहनत इसी तरफ है कि लोग उठें और लोग फ़लाह के कामों की तरफ अपने आप को माइल करें, और रमज़ान का महीना डेफिनेटली इस काम के लिए बेहतरीन महीना है। अल मुस्तफ़ा की हय्युल फलाह मुहिम का लोगो तुर्की के शहर इस्तांबुल में मौजूद अजीम और तारीखी मस्जिद सुल्तान अहमद मस्जिद से मंसूब है। स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत एडनबरा में गजाली एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से चैरिटी डिनर का अहतमाम किया गया। चैरिटी डिनर में पाकिस्तान के मशहूर शोरा वसी शाह और अमजद सलाम अमजद ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर दोनों मोतबर शोरा ने खूबसूरत शायरी सुनाकर हाजरीन से खूब दाद वसूल की। मुकर्ररीन का कहना था कि पाकिस्तानी कौम अतियात देने में पेश है, जिसका एतराफ़ पूरी दुनिया करती है। तकरीब के मौके पर नात खाहों ने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह हदिया अकीदत पेश किया। प्रोग्राम के अख्तिताम पर शुरका के लिए पुरतकल्लुफ़ खाने का भी एहतमाम किया गया था। पूरी दुनिया की तरह बर्मिंघम में भी मसीही कम्युनिटी की जानिब से गुड फ्राइडे नहायत अकीदत और एहतराम से मनाया गया। इस मौके पर वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें शुरका ने मखसूस लिबास पहनकर मजहबी गीत गाए। आबिद कासमी की रिपोर्ट। मसीहों के मजहबी त्यौहार गुड फ्राइडे की मुनासबत से वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें खवातीन और बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। स्मॉल हिल चर्च से शुरू होने वाली इस वॉक में बर्मिंघम के गिरदोनवा के तमाम चर्चेज की नुमाइंदगी मौजूद थी। इस मौके पर क्वेंट्री रोड स्मॉल हिल पार्क के सामने एक तकरीब की गई, जिस दौरान मुकर्ररीन ने गुड फ्राइडे की अहमियत के हवाले से शुरका को आगाही दी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैगामात पढ़कर सुनाए। तकरीब में पास्टर अजमल चुगताई ने ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी की नुमाइंदगी की। मीडिया से गुफ्तगू में पास्टर अजमल और दीगर का कहना था कि गुड फ्राइडे इत्तेहाद, इत्तेफाक और अमन का दर्स देता है। Remember the sacrifice that Jesus made, that we could all live and not die. For death was upon every one of us. But today we remember the life that was given in the name of Jesus. To God be the glory. God bless you all. Good Friday, because the promise of life was granted and a promise kept. It turned what should have been a tragedy into the greatest shout of victory this world has ever known. That's why it's a Good Friday.
to celebrate the death of Christ. He did not die in vain. He did not die because he was made to. He gave his life up freely for us, that we might have life and that you might have life, and all around the world. I just wish you a happy Easter. I praise your name. I thank you for all your Christians who love the Lord, and we just want to bless you, we want to praise you, and we want to give you thanks. As the witnesses of Jesus Christ, his disciples, whom he has redeemed by his blood that he shed on the cross, which is an indication that we are all blood washed, we're all cleansed, we're all purified, we've all been made whole, and we've been made into his image so that we can reflect, manifest, and show forth the praises of God, who has indeed called us out of darkness, the darkness of sin, and brought us into the light of his word, so that the world may see and know that God is God over all the earth, and that he is Lord of all. Even though Jesus died upon a cross, one of the most unimaginable tortures that he went through, his death was barbaric, and yet through that death we have been given the promise of everlasting, eternal life. And it's not the death that we remember over Good Friday. इस मौके पर दुनिया में अमन और खुशहाली के लिए भी दुआएं की गईं। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान आसार कदीमा के शोबे में ताउन को 60 साल मुकम्मल हो गए। इस हवाले से पेरिस में कायम पाकिस्तानी सफारतखाने में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसका अहवाल जानेंगे राजा हबीब की रिपोर्ट में। पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान आसार कदीमा पर बाहमी तावन के 60 साल मुकम्मल होने पर गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी सफारत खाने में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब का एहतमाम एसोसिएशन बराए पाकिस्तान दोस्ती ग्रुप की जानिब से किया गया था, जिसमें फ्रांसीसी वजारत ख़ारजा, फ्रांसीसी आसार कदीमा मिशन के अरकान, स्कॉलर्स, महक़क़ीन और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डॉक्टर अरोरे देदियर सरबराह फ्रांसीसी आसार कदीमा इंडस बेसिन ने इस मौके पर खसूसी खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में आसार कदीमा के मुकामात की खुदाई के दौरान सिंध में अमरी और बलूचिस्तान में महरगढ़, नंदावरी, नौशहरा, मरिकलात और शाही मकबरा दरियाफ्त किए गए हैं। पाकिस्तानी और फ्रांसीसी माहिरीन आसार कदीमा ने पाकिस्तान में मौजूद हज़ारों साल पुरानी तहजीबों के वजूद को नुमाया किया। पाकिस्तानी सफ़ीर मोइनुल हक का कहना था कि फ्रांस और पाकिस्तान के दरमियान आसार कदीमा के शोबा में मजबूत और मुसलसल ताउन के बायस ये शोबा एक तारीखी हैसियत हासिल कर चुका है। फ्रांस के दरमियान जो आर्कियोलॉजी के शोबे में जो कॉपरेशन है, उसके 60 साल की तकरीब हुई आज। जो पाकिस्तान जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान है, एसोसिएशन है फ्रांस में, उनकी ये पहली तकरीब थी। मुझे बड़ी खुशी है कि इस बड़ी इम्पोर्टेंट फील्ड में जो फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो 60 साल से पाकिस्तान में काम कर रहे थे और उन्होंने बहुत पुरानी तहजीबों को डिस्कवर किया, जिनमें महरगढ़ जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त। सफ़ीर पाकिस्तान ने फ्रांसीसी आसार कदीमा मिशन बराए इंडस बेसिन और फ्रांसीसी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तानी तालिब इल्मों और मुहक्किकीन को आसार कदीमा के शोबा में तरबियत और महारत देने पर इनका शुक्रिया अदा किया। सफ़ीर पाकिस्तान ने फ्रांसीसी आसार कदीमा के मिशन के पाकिस्तान में 60 साल मुकम्मल होने पर प्रोफेसर जेरिड की बेवा जनाब बेनवॉल के बेटे और डॉक्टर देदियर को यादगारी शील्ड पेश की। पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई कमीशन ऑन ए ब्रेक 2019 के सिलसिले में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें लेजेंडरी स्टार बुशरा अंसारी की परफॉर्मेंस ने हॉल कहकों और तालियों से गूंज उठा। मज़ीद जानेंगे दुबई से सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में। पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई की जानिब से ऑन ए ब्रिक फॉर पाकिस्तान मेडिकल सेंटर दुबई के लिए पाम जमेरा में गाला डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान और उनकी अहलिया और दुबई हुकूमत के नुमाइंदगान शरीक हुए। पाकिस्तान की नामवर फनकारा बुशरा अंसारी ने अपनी परफॉर्मेंस से महफिल को 4 चांद लगा दिए। वर्सटाइल अदाकारा ने अपनी आवाज का जादू और कॉमेडी के नश्तर चलाकर शुरका को तालियां और कहकहों पर मजबूर कर दिया। बुशरा अंसारी के साथ मारूफ फनकार लॉरेंस की परफॉर्मेंस भी काबिले दीद थी। आप दीवान नहीं सुहागिन, जब
तुमने बेवा को बुलाया है कि ये सवाल करने की क्या जरूरत है? बेवा कब है? देखो मियाँ, बेवा ऑटोमेटिक नहीं होती। मियाँ मर गए तो मैं बेवा हो गई। मियाँ का इंतकाल कब हुआ? मैंने कहा था ना कि बेवा ऑटोमेटिक नहीं होती, मगर मेरे बेवा होने में ऑटो का बहुत हाथ है। ऑटो का हाथ मैं समझा नहीं। दरअसल मेरे मियाँ अपनी कार के नीचे लेटे हुए कोई पुर्जा ठीक कर रहे थे। मैं सामने खड़ी थी, गाड़ी के नीचे से कहने लगे, ए हमीदा मेरा जैक ऊपर कर देना। मैंने गलती से जैक नीचे कर दिया। बस फिर एक आवाज आई, ज़ादी। पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई के सदर डॉक्टर फैसल इकराम ने मेडिकल सेंटर की तामीर पर आने वाले अखराजात और मुखय्यर शख्सियात की जानिब से इस मिशन की कामयाबी में हिस्सा लेने पर उनका शुक्रिया अदा किया। आज का इवेंट हमारा ओन अ ब्रिक कैंपेन का एक हिस्सा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 15,000 ब्रिक्स का टारगेट रखा था, जिसमें हमने अब तक 12,000 ईंटें गैदर कर ली हैं और वी हैव अनदर 3,000 ब्रिक्स टू गो। और वी कीप इंकरेजिंग द कम्युनिटी कि वो आएँ और इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। कम से कम एक ब्रिक हर फर्द कम्युनिटी का ज़रूर ओन करे। तकरीब के मरकजी मेज़बान नजम ख्वाजा का कहना था कि मिशन ऑन ए ब्रिक की कामयाबी के लिए कम्युनिटी समेत दीगर अहम शख्सियात को भी आगे आना चाहिए। ये जो ऑन ए ब्रिक कैंपेन है, ये 2-1 साल हुए जब शुरू हुई थी और ये टूवर्ड्स टेल एंड अब पहुँच रही है। पाकिस्तान मेडिकल सेंटर और पाकिस्तान सेंटर के लिए बनी थी और पाकिस्तान मेडिकल सेंटर इस तकरीबन कंप्लीशन के मौके पे आ रहा है, तो आई बहुत सक्सेसफुल रही है। इस मौके पर पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई मेडिकल विंग की सदर डॉक्टर निगहत आफ्ताब ने कहा कि 14 अगस्त के मौके पर इस मेडिकल सेंटर का शानदार इफ्तिताह पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक एजाज़ होगा। असल में ये जो भी हमें बना पाए हैं वो हमारे मुखय्यर हजरात की मदद से है, लेकिन हम उनसे अपील करते हैं कि अभी भी इसको चलाने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होगी, तो हम चाहते हैं कि जो लोग हैं वो आगे बढ़ के जितना हमारी मदद कर सकते हैं वो करें। से 14 अगस्त की इसकी ओपनिंग है। बुशरा अंसारी ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इस जज्बे की तारीफ करती हूँ जो इंसानियत के लिए काम करते हैं। बस जी ओवरसीज़ में हो या पाकिस्तान के अंदर हो, जहाँ भी इंसानों के लिए कुछ किया जा रहा हो अच्छा ही लगता है। और ज़ाहिर है कि बाहर के मुल्कों में रहने वाले अपना सारा कंफर्ट छोड़ के अपने आरामदेह ज़िंदगी के बावजूद दूसरों की तकलीफ़ का एहसास करते हैं, ये और अच्छी बात है। तो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इस बात को, इस एफर्ट को। तकरीब के आखिर में बुशरा अंसारी ने अपनी आवाज़ में गाना मुझे दोष न देना जग वालो गाकर महफिल पर सहर तारी कर दिया। मुझे दोष न देना जग वालो, मुझे दोष न देना जग वालो, ओ पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई की परवकार तकरीब में पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक की मुखय्यर शख्सियात शरीक हुई, जिन्होंने मिशन में दिल खोल कर हिस्सा लिया। किसी शायर ने खूब कहा है कि ईंट से ईंट जोड़कर ख्वाब बना रहा हूँ मैं। मिशन ऑन ए ब्रिक एक ख्वाब, और इस ख्वाब की तकमील के लिए पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई को आपके साथ की ज़रूरत। सैयद मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मुनक़िदा नुमाइश में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का स्पेशल शो। तफसीलात जानेंगे सादिर शेख की रिपोर्ट में। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से अयूब पार्क में सजाया गया स्पेशल ऑटो शो। रंग बिरंगी चमचमाती गाड़ियां और मोटरसाइकिलें देखकर क्या बच्चे क्या बड़े सभी बहुत महजूज हुए। कुछ ने तो सेल्फियां बनाई तो कुछ गाड़ी में बैठकर फूले न समाये। पुराने मॉडल की गाड़ियां और हैवी बाइक को इंतहाई महारत से डिजाइन किया गया। बाइक राइडर ने भी खूब करतब दिखाए। बहुत अच्छा है। इस तरह के इवेंट्स जो है चैम्बर को और बाकी भी जो इंडस्ट्रीज हैं और गवर्नमेंट है इसको अरेंज करने चाहिए। काफ़ी ये हेल्दी इवेंट है। बहुत अच्छा जा रहा है और बहुत अच्छा इवेंट है।
और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। ये तो हिम्मत है इन कार ओनर्स की कि इतने प्यार से अपनी गाड़ियों को रखते हैं और इतने अच्छा रखते हैं। बेसिकली इन इवेंट्स में की सेलिब्रेशन से ये होता है कि तमाम के तमाम सोसाइटी के लोग जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होते हैं, उन पे आपस में मिलते हैं, एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट होता है और इसके साथ बिजनेस की भी एक अपॉर्चुनिटी है। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के स्पेशल शो को देखने के लिए न सिर्फ रावलपिंडी बल्कि दूर दराज से भी शहरियों ने शिरकत की और मुंतजिमीन को दाद दिए बगैर न रह सके। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ साजिद शेख, 92 न्यूज़, रावलपिंडी।